study about transportation in humans, and specifically in this topic we will be studying about blood and about heart, right? We will draw a diagram of heart in this video, right? See, about studying about heart is easier, but when it comes to draw a diagram of heart, it needs a lot of practice, right? And how to draw this diagram, I'll show you, right? I'll show you the way in which if you draw any diagram, the diagram will be a bit easier, right? There is some techniques to draw diagrams, to draw biology, to draw any kind of diagrams, right? So we will see this in this video, and first we'll start with blood, right? Yes, in this video I have not changed the background, I have kept the real background, right? That is board. So today we will use our board because we need to draw diagram. We need to learn how to draw diagram of heart, right? So let's study about blood first. Blood is a tissue in our body. Yes, it is a connective tissue in our body which is in fluid form, because it has to transport many things in our body, right? From oxygen till it includes transportation of oxygen, nutrients, then auxiliary waste, carbon dioxide. It is also kind of auxiliary waste, some salts, protein molecules, hormones, etc. Right? It have to transport many things, right? There are also different type of blood cells in blood, like it is having erythrocytes, that is red blood cells. It is having white blood cells, platelets for clotting of blood. Whenever we have wound, it get clotted, right? The clotting is done by platelets that are present in our blood, right? They are cells which is helping in clotting of blood, right? So these are the different types of cells which are present in our blood, and it is really very much essential for us, right? Red blood cells are those cells which are helping in transportation of respiratory gases, especially, right? Almost 70 to 80% of oxygen and carbon dioxide, more than that, right? More than 70 to 80% of oxygen and carbon dioxide is transported by blood, because when carbon dioxide dissolves in fluid, it becomes acidic. So if huge amount of carbon dioxide get dissolved in blood plasma only, then our blood plasma will be highly acidic, right? Highly acidic, not that highly acidic, but yes, its pH will be lesser than what is required. Understood? एक ब्लड का pH होना चाहिए, कभी यहाँ से pH डाउन नहीं हो जाएगा, नहीं होना चाहिए. अगर ये हो गया तो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आएंगे. तो वो pH को मेंटेन रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज transported through other components of blood rather than plasma. Understood? तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है. मेनली वाटर इज देयर, एंड देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन इट, लाइक salts, proteins, then hormones, and all those things, right? Auxiliary waste. So this is about blood. Blood get transported throughout our body, within our blood vessels, because we are having closed circulation. That means we are having blood vessels, arteries, veins and capillaries, and within these blood vessels blood is flowing, transporting or distributing oxygen, nutrition, that is glucose, amino acids and all such things to different types of tissues, right? In different tissues. And they are gathering carbon dioxide, auxiliary waste, and giving it to kidney, liver, etc. Understood? So this is how transportation is an extensive process which is carried out by blood in our body, right? Now let's switch to heart. Heart is an organ which is of fist size, right? It is slightly tilted towards left, and because of that our left lung have cardiac notch, right? मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बोला है कि लंग में, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होता है. That is because of heart. That is because heart is tilted, right? तो थोड़ा tilted होता है तो ventricles, obviously ventricles larger है, और एट्रियम से या ऑरिकल्स बोले, जो भी बोले हम लोग, ठीक है? तो ventricles बड़ा है, तो ventricles take larger space, and that's why that cardiac notch is present in left lung. Understood? Okay. यहाँ पर देखो, our heart is very much different from heart of
fishes, amphibians, reptiles. Why? Because our heart is four chambered, two auricles or atrium and atria or two ventricles are present. Understood? दो ऑरिकल्स या एट्रिया बोलो, जो बोलो आप, ठीक है, और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? जिसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का पंपिंग होता है। अंडरस्टूड? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन इन अवर बॉडी जो ब्लड को पंप करते रहता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करते रहता है हमारे बॉडी में, हार्ट। अंडरस्टूड? और इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, कार्डियक मसल्स होते हैं जो कभी भी फैटिग नहीं होते हैं। इट इज इनवॉलंटरी ऑब्वियसली, नहीं तो मैं अगर मुझे सुसाइड करना है, आज देखो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ठीक है, तो हार्ट इज हैविंग सच थिंग इन इट, राइट? इट इज नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू विश फॉर स्टॉप पंपिंग ऑफ हार्ट, इजंट इट? तो ठीक है, चलो फिर अब हार्ट के बारे में हम लोग ने काफी कुछ जान लिया है, ठीक है। हार्ट में और भी चीजें होती है, जैसे वाल्व्स होते हैं टू फ्लो ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर, वाल्व्स आर देयर। अंडरस्टूड? तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और डायग्राम के साथ साथ समझ लेते हैं, तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट इज ऑफ हार्ट, ठीक है। सो लेट्स गैदर सम चॉपस्टिक्स, डस्टर्स एज वेल। ओके, कोई भी डायग्राम आप बनाते हो, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, मैं आपको एक लियोनार्डो डा विंसी का एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। उसके हर एक पेंटिंग बहुत अच्छे है, राइट? एंड उसका एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। उसका सीक्रेट ये है कि हर एक पेंटिंग के पीछे ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क होता है। इट इज नॉट सीक्रेट, ठीक है, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम होगा, हर एक अच्छे पेंट के पीछे ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क होता है। अंडरस्टूड? मतलब एक ज्योमेट्रिकली पहले सेट कर लो। जब भी लियोनार्डो डा विंसी कोई भी पेंटिंग ड्रॉ कर देते, उससे पहले वही कैनवास पे या उसके पीछे पेंसिल से या किसी कोई मार्कर से पूरा ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते थे कि देखो ये पूरे पेंट का सेंटर है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट रहेंगे और मदर मैरी रहेंगे, ठीक है। ये सेंटर के आजू बाजू में, ये सेंट्रल एक्सिस है, उसके आजू बाजू में ये दो रहेंगे। तो इस तरीके से सारे पेंटिंग उन्होंने बनाया है। अंडरस्टूड? मोनालिसा का फेस एकदम पेंटिंग के बीच में आएगा, राइट? दैट कैन बी डन ओनली बाय ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई मोनालिसा टाइप का या लियोनार्डो डा विंसी टाइप का, आई मीन जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी का वो वाला पेंटिंग नहीं, उस टाइप का पेंटिंग नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल टाइप का पेंटिंग बना रहे हैं। तो सिंपल टाइप का पेंटिंग बना रहे हैं तो सिंपल ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। वो फ्रेमवर्क क्या है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग है ना एकदम डॉटेड लाइन से क्रूसीफाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्रूसीफिक्स ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रूसीफाई है ना थोड़ा सा टिल्टेड ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट पे टिल्टेड है, ठीक है। अंडरस्टूड? और फिर देखो ऐसा याद रखना कि ऑरिकल्स के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वेंट्रिकल्स के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड? और ये थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो गया, तो ये टिल्ट को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। अब मैं यहाँ पर दो कलर्स यूज करूंगा। दो कलर क्यों यूज करूंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। अरे यहाँ पर अंडरस्टूड? ठीक है। अब
अंडरस्टूड. थोड़ा सा कर्व लगना चाहिए ना.
Now this is human heart, right? This is called human heart. I wish my board is bigger, taller. It is bigger. It is very much bigger. It should be have higher height, you know. Then you can rub this thing. पूरा रब करने की जरूरत नहीं है, बट जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, राइट? इट हैव 2 auricles and 2 ventricles. Understood? Now this particular ventricle is called, कौन सा बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल. इसको बोलेंगे राइट एट्रियम. एट्रियम एक ही है ना, एट्रियम. चलो यहां पर भी छोटा भी लेते हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल. अंडरस्टूड? तो चलो यहां पर हम लोग सर्कुलेशन भी समझ लेते हैं. ठीक है, सर्कुलेशन के लिए आई विल यूज येलो कलर्ड चॉक. ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां पर होता क्या है, देखो यहां से ब्लड हार्ट के अंदर आता है. दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड. ये ब्लड कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है. ठीक है, एक्चुअली यहां पर नहीं होता है, ये यहां पर होता है. अंडरस्टूड? ये इसका एपर्चर जो है यहां पर होता है, तो डॉर्सल साइड में ये ओपन होता है. अंडरस्टूड? अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट हमेशा हम उल्टा क्यों लेते हैं. बायोलॉजी में जब भी हम कोई ऑर्गन्स पढ़े तो हम लोग हमेशा लेफ्ट राइट उल्टा लेते हैं. क्यों? क्योंकि आप लोग में से जब भी कोई अगर डॉक्टर बनेगा तो आप लोग में से वेंट्रल व्यू जब देखेंगे, पेशेंट का वेंट्रल व्यू जब देखेंगे तो पेशेंट का लेफ्ट आपके राइट साइड में होगा और राइट आपके लेफ्ट साइड में होगा. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग हार्ट का वेंट्रल व्यू देख रहे हैं. व्हेनेवर वी सी वेंट्रल व्यू ऑफ एनी ऑर्गन, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेंट्रल व्यू देख के ही, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स वेंट्रल व्यू देख के सर्जरी करते हैं. ठीक है, तो वेंट्रल व्यू हम लोग इसके पढ़ते भी हम लोग ज्यादातर वेंट्रल व्यू है. अंडरस्टूड? तो वेंट्रल व्यू में अगर आप मेरा ही देखोगे तो आपका ये साइड कौन सा है? लेफ्ट है, मेरा राइट है. अंडरस्टूड? और आपका ये साइड कौन सा है? बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर सीइंग मी लैटरली इनवर्टेड, तो आपको ये मेरा राइट दिख रहा है बट इट इज माय लेफ्ट हैंड. अंडरस्टूड? बिकॉज यू सीइंग माय वेंट्रल व्यू. आप लोग मेरा वेंट्रल व्यू दिख रहे हो, इसलिए आपका लेफ्ट मेरा राइट हो गया और आपका राइट मेरा लेफ्ट हो गया. अंडरस्टूड? तो ये याद रखना हमेशा, वेंट्रल व्यू. अंडरस्टूड? तो चलो, ब्लड विल एंटर इनटू, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन राइट एट्रियम. अंडरस्टूड? देन थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इट एंटर्स इन राइट वेंट्रिकल. अंडरस्टूड? Okay, so this will be called as tricuspid valve. Understood? और ट्राइकस्पिड वाल्व जब भी ओपन होता है तो राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, यहाँ पर व्हाइट कलर का एरो क्यों यूज किया? चलो गलती से यूज कर लिया. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर ये वाल्व क्लोज हो जाता है. ठीक है, फिर जैसे वेंट्रिकल को प्रेशर लगता है तो दिस ब्लड विल गो टू
pulmonary artery. It will go to pulmonary artery. Pulmonary artery का मतलब क्या है? From pulmonary artery, जब भी हम लोग जैसे हार्ट के लिए कार्डियक हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, प्रीफिक्स नहीं एडजेक्टिव यूज करते हैं, वैसे लंग्स के लिए हम लोग पल्मोनरी एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस आर्टरी इज ऑफ लंग्स. दिस आर्टरी विल सेंड ब्लड टू दी लंग्स. अंडरस्टूड? तो हाँ, लंग्स में ब्लड कैसा जाता है? डीऑक्सीडेटेड जाता है ब्लड, ठीक है. लंग्स को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? लंग्स में ही सांस लेते हैं, इनफैक्ट वो ऑक्सीजन ऐड करता है ब्लड में. अंडरस्टूड? तो ये ब्लड जाएगा फिर लंग्स में. अंडरस्टूड? एंड ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड. यहां पर ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है. तो लंग्स में फिर के आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होके आएगा. फिर दिस इज, कुछ लोग यहां पर लेबल भी कर देते हैं, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. अंडरस्टूड? चलो, अब ये लंग्स में चला गया. अब लंग्स में से वापस ब्लड आएगा ना, तो ब्लड आएगा वेन से, ठीक है. तो ये वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी है, जैसे ये पल्मोनरी वेन. अंडरस्टूड? अब पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर हो चुका लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. अंडरस्टूड? इट विल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. देखो यहां पर लंग्स में से ब्लड आया है ना, जब भी ब्लड लंग्स में आता है तो ऑक्सीजनेटेड होके आता है. कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड होके आता है ब्लड, ठीक है. तो यहां पर भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आया है, ठीक है. दैट्स व्हाट, ये देखो ये पूरा पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना. क्यों ऐसे मैंने ड्रॉ किया? बिकॉज इन दिस चैम्बर्स ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड इन दिस चैम्बर्स ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है. तो चलो, हार्ट तो पूरा पिंक कलर का ही होता है, डार्क पिंक रेड कलर का होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है. चलो, फिर यहां से ब्लड जाएगा वापस, जब वेंट्रिकल में प्रेशर आएगा तो ब्लड जाएगा aortic arc में. अंडरस्टूड? दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड aortic arc. मतलब ये समझ लो आप, जैसे प्लांट में ट्री होता है ना, फिर ट्री में से सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ये ट्री का वो ट्री होता है, उसका स्टेम होता है, स्टेम में से सारे ब्रांचेस निकलते हैं. तो ये स्टेम जैसा है, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है. तो इसको बोलते हैं aortic arc. अंडरस्टूड? और aortic arc में से बहुत सारी आर्टरीज निकलेंगी. जैसे यहाँ पर से कैरोटिड आर्टरी निकलेगी जो हमारे हेड में ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है. आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है इतना सब कुछ, ठीक है. अब बस इतना समझ लो कि यहाँ से आर्टरी में और aortic arc में ब्लड जा रहा है, ठीक है. और यहाँ पर भी देखो एक वाल्व है, तो ये वाल्व को हम लोग बोलते हैं aortic semilunar valve. क्या बोलेंगे इसको? aortic semilunar valve. अंडरस्टूड? इट इज कॉल्ड ठीक है. अब पूछो इसको सेल्यूलर वाल्व क्यों बोलते हैं? पूछो. इसको सेल्यूलर वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये आधा चांद जैसा है ना, क्रिसेंट मून होता है ना, क्रिसेंट मून, ठीक है, ईद वाला मून, ठीक है. तो वो आधा करेंगे ना, तो देखो ये एक आधा मून है, ये भी एक आधा मून है, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेल्यूलर वाल्व. इसीलिए इसका नाम सेल्यूलर वाल्व होता होगा शायद. अंडरस्टूड? तो इट इज aortic, क्योंकि aortic arc और वेंट्रिकल के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड aortic semilunar valve, ठीक है. तो यहां पर भी ये जो वाल्व है ना, दैट इज कॉल्ड pulmonary semilunar valve. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ब्लड में, आई मीन हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है. अब देखो ये पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है, ये आर्टरी से. और जो भी फिर ब्लड पूरा बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा ब्लड, जब वेन से वापस हार्ट की तरफ आएगा तब ब्लड में से ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका होगा, मतलब एक बहुत ही कम हो चुका होगा, ठीक है. तो ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन का आवाज से अंदर आएगा, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे? वेन का आवाज. ये इंफीरियर और सुपीरियर, आई एम सॉरी, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर और एंटीरियर, और इसको बोलते हैं इंफीरियर और पोस्टीरियर. मतलब नीचे से आएगा, ये ऊपर से आएगा. अंडरस्टूड? और ये मेन एक मेन भाव बनके ब्लड को अंदर पोर करेगा.
अंडरस्टूड? तो ये जो आई मीन दिस इज हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्टिंग विद इन दी हार्ट, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पहली बार में आप ड्रॉ करोगे तो आपका डायग्राम ऐसा ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है? और ये ऐसा ही ड्रॉ करना है क्योंकि आपको दिखाना है इसमें कि वाल्व्स कैसे, कहां पर सिचुएटेड होता है और किस तरीके से वाल्व्स अरेंज होते हैं, सो दैट आप देखो यहां पर ऐसे वाल्व्स प्रेजेंट है तो आपको पता चलेगा कि ब्लड कैन नॉट गो फ्रॉम हियर टू हियर, अंडरस्टूड? जब भी प्रेशर आएगा तो ब्लड यहां से यहां फ्लो होगा, अंडरस्टूड? और यहां पर प्रेशर आएगा तो ब्लड विल नॉट मूव फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रियम और ऑरिकल, बट इंस्टेड इट विल मूव टू आर्टिक आर्क और यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आएगा। चलो फिर से पूरा एक बार सर्कुलेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो सबसे पहले देखो, चलो हम लोग वेन कावा से स्टार्ट करते हैं। वेन कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है? राइट एट्रियम में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इट विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वापस हो जाएगा थ्रू पल्मोनरी सेल्युलर वाल्व, इट विल एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, वहां पर ब्रीथिंग ऑफ आई मीन एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस हवा और ब्लड के बीच में होता है, तो ब्लड में ब्लड गेट ऑक्सीजनेट होते हैं, ठीक है? तो वहां से फिर लंग्स से जब ब्लड आएगा तो इट विल एंटर इनटू पल्मोनरी वेन लंग्स में, ठीक है? लंग्स में पल्मोनरी वेन में आएगा और पल्मोनरी वेन पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। इट विल पोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दिस लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, ये तो करना रहेगा ना, थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, थ्रू बाइकस्पिड वाल्व इट विल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे लेफ्ट राइट में ऑक्सीजनेटेड कहां पर ऑक्सीजनेटेड कहां पर डीऑक्सीजनेटेड, ये बहुत कंफ्यूज होता था, ठीक है? तो फिर मैंने एक इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है, वो ये आप लोगों को भी हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हो इजीली लर्न करने के लिए। तो चलो, जो लेफ्ट है, दैट साइड विच वी हैव लेफ्ट कॉल्ड लेफ्ट is actually transporting oxygenated blood, ठीक है? जो लेफ्ट हो गया, जिसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, उसमें ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलो। और जिस and the side which we consider as right, understood, which we consider as right side is transporting deoxygenated blood, ठीक है? तो ज्यादा इसमें लॉजिक मत लगाना, बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है? राइट साइड मतलब जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट साइड मतलब जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अंडरस्टूड? सो लर्न दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, अंडरस्टूड? अगर 11th में बायोलॉजी देते हो तो यही डायग्राम थोड़ा सा मोर डिटेल में विद सम मोर डिटेल, यहाँ पर पैपिलरी मसल्स आएगा, बॉडी ऑफ टिम्पनी, तो ऐसे कुछ मोर डिटेल्स के साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना हो, अंडरस्टूड? सो दिस डायग्राम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गुड बाय फॉर नाउ।